One time I was sitting and the family was watching some TV show. It was some show about some daily, TV soap kind of thing. So they are watching, and there was a scene which is a very drastic kind of scene, and the villain wants to kill the main protagonist female, and she is running, and the lady, her mouth was wide open. And I said, put a laddu in her mouth. When people are watching cricket, they are so absorbed in seeing the cricket that one time it really happened. A person told me that Sachin Tendulkar was out and he got so angry, he threw his television set. He broke it. They got so absorbed, they totally, have forgotten that it is just a TV or it's a show or it's a movie. This means your mind does know how to be concentrated. So if your mind is not being nice and calm when you are doing your mantra jap, the truth is this, you actually and really don't want to do it. Because Mahatmas are saying mantra jap karo, तो डंडा पड़ता है, तो अच्छा मंत्र जप करते पर मन भाग रहा है काम में, पैसे में, दुकान में, दुनिया में, बच्चे में, रिश्तेदार में, शॉपिंग में, इसलिए माला यहीं रह जाती है, मंत्र जीभ पे रह जाता है और मन भाग जाता है. तो ऐसा नहीं कि आपके मन को केंद्रित होना नहीं आता है, लेकिन अभी भगवान के साथ मन जुड़ा ही नहीं और मन के अंदर भाव की कमी है और मन में संसार की अपेक्षा और महत्व ज्यादा है, इसलिए जब भजन करने बैठते तो मन नहीं टिकता है. अब देखिए दिक्कत है आपकी, तो आपकी इस दिक्कत की मैं पूर्ति कैसे करूं? हम तो कह सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्रेम और भाव कैसे भरे? आई एम टोटली हेल्पलेस ओवर देयर. I really pray to Lord that maybe there was some way in which, I could do that formula, and whosoever, at one time, this was my, intentions, and this was a very heart-wrenching desire which I had, that the way I enjoy my Lord's name, may everybody should enjoy that. And that is why whosoever would call me, I would bunk my school to do satsang and sit with them, with that small group, to teach them, or to do kirtan. And what a joy! भाव और प्रेम किसी जादू मंत्र टोने से तो आता नहीं है. तो हम एक ही चीज कह सकते हैं कि जो अभी नहीं है उसके लिए सच्चे मन से जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जब तक दुनिया में मन जमा हुआ है और गड़ा हुआ है, उदो मन न भये 10-20, एक खुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस. मन तो एक ही है और उसको मजा आता है दुनिया में. मन तो एक ही है, तो फिर साधना में, भजन में कहाँ से लगेगा? मुश्किल हो जाती. तो उसका लिए एक उपाय फिर क्या कहा कि सत्संग सुने, संतों के संग में बैठे, भगवान के प्रेमियों के संग बैठे. भगवान के प्रेमियों के संग बैठने से, उनको सुनने से, उनको मिलने से जो उनके अंतर घटित हो रहा है वो शायद हमको भी प्राप्त हो जाए. And that is why the importance of being in satsang is. See, yes, even now I am being recorded. This recording will be aired sometime on the TV and on the YouTube, etc. But you know what? One thing which this camera, poor camera, cannot record is the energy over here. This energy cannot get recorded here, and that is the reason I have to travel all the way from India to come to Leicester to sit with you, to share this energy.
Right? Words can be recorded, my face can be recorded, but this energy cannot be recorded. No technology is still sufficient enough or competent enough to do this job. Possible नहीं है. सत्संग में बैठने से, सत्संग श्रवण करने से, प्रभु नाम जस कीर्तन श्रवण करने से, उसकी स्तुति सुनने से, उसके भक्तों के साथ बैठने से, उसका नाम कीर्तन गाने से, ये करते रहने से एक कृपा है जो फिर हो जाती है. एक कृपा है जो फिर हो जाती है. और जिस दिन यह कृपा हो गई, फिर तुम्हारा मन देखो एक ही है ना, जो अभी इधर गया था वो फिर अंदर मुड़ जाता है. एक हमें पंजाब में मिले थे, गुरु हर सहाय में, छोटा सा एक कस्बा है क्लोज टू फिरोजपुर, एंड दिस जेंटलमैन was dragged into my satsang by one of his friend. He said, let's go. And he said, I am not interested into satsang and all that. He said, let's go, just for fun, come with me. So he came and he heard the satsang and something clicked. And that was the day when I was talking about not drinking alcohol. And I said, that if you have understood what I have said, see, my one simple logic is this: what you cannot take into external temple should not be taken into this body temple. Simple. जिस दिन आप मीट, मुर्गा, चिकन अपने मंदिर गुरुद्वारे में अंदर ले जा सकोगे ना, उस दिन इस शरीर के अंदर भी डाल देना. अगर वहां नहीं ले जा सकते हो तो फिर इसके अंदर भी मत डालना. Simple. You will take fruits, you will take vegetables, you will take mithai to mandir, but you will not take chicken burgers, or alcohol or beer or something like that in a temple. If you can't take it in a temple or a gurdwara or in any religious place, then how can you take that into this body? This body is temple created by Lord. Right? And I said, those who wish to leave alcohol and non-vegetarian, please raise your hands and I will give prasad to them myself. Just my appreciation, my love to them. So I had arranged for apples. So I had 4-5 big huge stacks of baskets of apple. And that was the day when I gave round about 340 people, all men, who rose in that huge assembly, and one by one they came to me and I gifted that loveful apple to them, my love to them, that they made that. So this man, he was an addicted to alcohol kind of person. So his day would begin with the alcohol. And he too came in that. So he was just not interested to come into satsang, and yet he comes. And not only he comes, something clicks in his heart and he took the vow never to drink and never to eat meat. He took the prasad. Then after some 5-6 years or so, I met him again in ashram and I said, how is life? He said, very good. I said, but your eyes seem like drunk eyes. He said, yes. Now my eyes are truly drunk because you have given me such a portion of alcohol, which is the divine love, which is always running in my mind. This bar is always open and I'm always drinking. It's all, that happened how? One moment, he took one moment to decide that. एक पल लगा उसको. और मैं जानती नहीं हूँ वो कौन है, बस इतनी सी ही बात हुई और इतने में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, पूरी जिंदगी उसकी बदल गई. इसीलिए कहा कि सत्संग में बैठो, इसीलिए कहा सत्संग का महत्व है, इसीलिए कहा कि संत जनों की संगति में बैठोगे तो रंग लागत 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 है, मन जागत 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 है, रंग लग जाएगा.
आज नहीं टिकता है मन, कल जरूर टिकेगा। देखो अभी आप लोग बैठते हो तो लगभग 1.5 घंटे से 5-10 मिनट कभी कभी ऊपर बोलती हूँ मैं, और आप सुन रहे होते हो, और हर बार मैं घड़ी देख के बंद करती हूँ, आपको तो घड़ी भी याद नहीं होती है। तो ये मस्ती है कि नहीं? फिर ये मस्ती है कि नहीं? ये तो बड़ी मस्ती है। अब ये मस्ती आपकी परमानेंट हो जाए, उसके लिए थोड़ा आपकी तरफ से भी कुछ मेहनत होनी चाहिए। रोज का 1 घंटा अपने आप को देने लग जाओ, और जो सीखी आपने साधना उसको करने लग जाओ, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अध्यात्म बढ़ेगा, सात्विकता बढ़ जाएगी, और ये रंग लागत 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 वाली बात जो है वो निश्चय ही होने लग जाएगी, बिल्कुल होने लग जाएगी। मैं ये समझती हूं कि इस पे हर मनुष्य का अधिकार। Every human being has a right to feel this celebrative bliss within oneself, and that is so simple. We just need to bring our mind and heart to the truth, to the Lord, who is outside. It's just a idol, a picture, which is a great tool to bring training to our mind so that we can dwell, we can focus onto the Lord who is sitting within me. Right? So, बात आती है कि मस्ती से और भक्ति से जीवन जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन का आनंद कुछ और हो जाता है। जिंदगी कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है। आज मैं एक सज्जन को मिली, उनके शरीर में कुछ थोड़ी तकलीफ आई, दवाई खाई, दवाई का साइड इफेक्ट हो गया तो उनकी टांगें चलने बंद हो गई। एक छोटी सी बात हुई और पूरा जीवन बदल गया। लेकिन एक मस्त बात यह है, उनका शरीर अस्वस्थ था लेकिन उनका मन इतना स्वस्थ था। वो सत्संग सुनते हैं, वो बैठे बैठे अभ्यास करते हैं, और वो अपने मन को गुरु के साथ जोड़ के रखते हैं। और वो जो वो मिलने आए तो उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या हुआ, आप ये बैसाखी लेके क्यों चल रहे हो? उन्होंने नहीं कहा, ना रोना रोया, ना दुख, ना तकलीफ कोई जाए। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया मुझे। अब ये उनके अंदर इतनी सहन शक्ति, और उनके आंखों में एक मस्ती थी कि मैं आपको मिल रहा हूँ सामने सीना बसीना, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। टीवी में देख रहा था आपको, इंटरनेट पे देख रहा था, पर आमने सामने ऐसे मिल पाऊंगा, मेरी ये इच्छा पूरी। उनकी आंखों में खुशी थी, उनकी आंखों में आनंद था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया। इसे मैं कहती हूँ धर्म की शक्ति, इसे मैं कहती हूँ अध्यात्म की शक्ति, इसे मैं कहती हूँ आपकी साधना की शक्ति, कि जीवन में बड़े से बड़ा झटका भी आ जाए तो भी आप परेशान नहीं होते, आप उसको भी सहन कर लेते हो, और आपकी साधना अंतर चलती रहती है। That is the beauty of being a true spiritual aspirant, because you are blessed with so much of grace and love of Lord that your every minute and every second of life is worth living and worth celebrating. हम आनंद से जिए, हम खुशी से जिए, हम सुकून से जिए, हम शांत मन से जिए। इसका अधिकार सबका है, पर यह होगा कब? जब हम अपने मन को ट्रेन करते हैं साधना के साथ, जब हम अपने आप को इस सत पथ पे चलने की जो आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यक साधनाएं हम करने लग जाएं। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टेकिंग वन स्टेप, दैट वन स्टेप will lead to another, to another, to another, to another, and then thousands miles long journey ends with that one step and begins with that one step. Very small, tiny step. बस वही आपको करना है। एक कदम आपने लिया है, वो ये है, यहाँ आप आए हैं, सत्संग में बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये एक कदम है। अब इसके ऊपर एक दूसरा कदम आपने लेना है। वो ये हो कि आप एक समय निश्चित कर लें कि रोज 24 घंटे में से ये एक समय है जब मैं बैठ करके ध्यान करूँगा, प्राणायाम करूँगा, सुमिरन करूँगा, जप करूँगा, स्वाध्याय करूँगा। वो टाइम फिक्स्ड है, वह आपकी और ईश्वर की अपॉइंटमेंट, डेटिंग होती ना,
You fix up a date, and then you fix up a time, and you fix up a place. So fix up a place. This is my place where I'll sit. Then this is my time when I'll date my Lord, and I'll have chit chat with my Lord. वो एक निश्चय बना ले, ये तो करना ही करना, चाहे फिर कुछ हो जाए। रोज बैठने लग जाएं, सत्संग सुनते हुए, साधना करते हुए। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है अपने हाथ से सेवा करिए। अनफॉर्चुनेटली मंदिरों में आने वाले जो प्रेमी हैं वो खाली प्रसाद लेके भागने वाले ज्यादा होते हैं, सेवा पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं। थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। आप जहाँ भी जिस भी धर्म स्थान में जाते हैं अपने हाथ से वहाँ सेवा करें। झाड़ू लगाना हो, सफाई करना हो, बर्तन का हो, पकाने का हो, खाने का हो। When you do the physical labor, when you do seva from your body, actually you burn your own sins. हम अपने पाप कर्मों को जला देते हैं जब हम सेवा कार्य करते। तो सेवा का समय अवश्य निकालना चाहिए और आनंद से सेवा करनी चाहिए। जब हम यह सेवा करते हैं तो समझिए कि आप तो फिर दुनिया में कहीं भी रहो, कृष्ण खुद चल के तुम्हारे हृदय में आ जाता है। सेवा करना, सुमिरन करना और साधना के लिए समय देते रहना, ये तीन चीजें, सेवा, साधना और सुमिरन, ये तीन चीजें अपने जीवन में ले आए। द ग्रेट सर्विट्यूड, सिटिंग टू डू योर chanting, your remembrance, and sitting to do your spiritual practices. These three things, if you can bring these three things in your life will change drastically, beautifully. And you will be able to deal with all difficult situations with a great wisdom and great calmness. And I am seeing every day common men, common women like me, they are getting challenged by their life and they are being so nice and so somber and so calm and dealing with the situations. Beautifully they are doing it. मैं एक भजन गाया करती हूँ कि वृंदावन का अगर आज शुरू हुआ ना मीरा जी से, तो फिर कृष्ण तो आ ही जाएंगे। तो वृंदावन में गोपी कहती है, मैं तो चुपचाप कदम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और मन ही मन तुझे याद कर रही थी, मन ही मन कर रही थी। और चल के कृष्ण अपने आप आ गए, अपने आप से आ गए, मैंने बुलाया नहीं, वो अपने आप से आ गए। मैं तो चुपचाप कदम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। That is what I am. The day you will begin this meditative attitude, the divinity will fall on you. Listen to this bhajan. काना आयो रे, रे आयो काना आयो रे, काना आयो रे, आयो काना, काना आयो रे, रे आयो काना, आयो झूम झूम पग घूम घूम, आयो झूम झूम पग घूम घूम, संग लाल लायो रे, रे आयो काना आयो रे। बैठी थी कदम तले चुपचाप बैठी थी, रंगी ना जाऊं चुपचाप बैठी थी, रंगी ना जाऊं चुपचाप बैठी थी। आयो गणन गणन पग छनन छनन, आयो गणन गणन पग छनन छनन, छनकार लायो रे, रे आयो काना आयो रे, काना आयो रे, रे आयो काना, काना आयो रे, रे आयो
भर मारी पिचकारी मोहे बार बार मारी। कियो छीन झपट बिखरी मोरी लट, कियो छीन झपट बिखरी मोरी लट। गुलाल लायो रे रे आयो गुलाल लायो रे, कान्हा आयो रे रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे रे आयो कान्हा आयो रे। आयो झूम झूम पग घूम घूम, आयो झूम झूम पग घूम घूम। संग लाल लायो रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे रे आयो कान्हा आयो रे। कान्हा संग तन मन एक रंग मन गयो कान्हा संग। फागुन आयो रे रे आयो फागुन आयो रे, फागुन आयो रे रे आयो फागुन आयो रे। कान्हा आयो रे रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे रे आयो कान्हा आयो रे। आयो झूम झूम पग घूम घूम, आयो झूम झूम पग घूम घूम। संग लाल लायो रे रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो कान्हा आयो रे रे आयो कान्हा आयो रे, 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 कान्हा आयो रे रे आयो कान्हा आयो रे। जो रंग वो फिर देता है वो रंग कभी उतरता नहीं। बाहर के रंग उतर सकते हैं पर जो रंग परमात्मा आपको भीतर से देते हैं वह रंग कभी उतरता नहीं, वो हमेशा रहता है हमारे साथ। और अजीब बात यह है जिसने आपको छोड़ जाना है उस दुनिया के पीछे पागलों की तरह घूमते हो, और जिसने कभी छोड़ना नहीं उस परमात्मा को छोड़ के बैठे हो। तुम्हारे घर वाले ना 4 कंधों पर बैठा के तुम्हें छोड़ आएंगे, चल भैया जा, तू अब जिंदा ही नहीं है तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। जिन्होंने छोड़ देना है उनके पीछे पीछे पागल होते हो, और जिस परमेश्वर ने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं उसको छोड़े बैठे हो। इसलिए जिंदगी में कुछ चेंज लाने की जरूरत है। लेट दिस बी योर प्रायोरिटी। Seek that who will never leave you. Seek that who is eternal. Seek that who is your own real self. इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सब लोगों ने इतने प्रेम और भाव से यहाँ बैठकर सुना है। I am really touched the way you have received me
और वो सब लोग जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, स्नेह और शांति भरपूर रूप से आए। प्रभु आप सब पर कृपा करें। शांति पाठ में मेरे संग सम्मिलित हो जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो भाई सब संतन की।